Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Maurya. Good morning. How are you guys? Hope you are well, healthy and hearty. So let's start. Today we are going to have another 9 adjectives which are powerful words, and add your vocabulary. Adding your vocabulary means adding wealth of knowledge in your brain, in your stock. So let's have these words first, one by one, and know the meaning. Exemplary, adamant, mandatory, and comatose, pernicious, arid, omnivorous, refractory, ostentatious, refractory, omnivorous, arid, pernicious, comatose, mandatory, adamant, exemplary. So let us take one by one. So exemplary means मॉडल. जैसे आप कोई विद्यार्थी है, बहुत अच्छा है यहाँ और वो सब चीज़ में अच्छा है, देखने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, लिखने में अच्छा है, चेहरा मोहरा भी अच्छा है, तो वो सभी विद्यार्थियों के लिए वो क्या हो सकता है? एग्जाम्पलरी. वो सबके लिए एक उदाहरण हो सकता है, एक एग्जाम्पल हो सकता है, एक मॉडल हो सकता है. तो एग्जाम्पलरी का मतलब होता है मॉडल. एग्जाम्पलरी मतलब होता है मॉडल, एग्जाम्पल एक उदाहरण. जैसे गांधी जी वॉज एन एग्जाम्पलरी कैरेक्टर. गांधी जी वॉज एन एग्जाम्पलरी कैरेक्टर मीन्स गांधी जी in that very time was a character, typical Indian character, and who represented the whole country, that he was simple in living and lofty in thought and strong in character. So he was an exemplary character. Gandhi ji was an exemplary character. So exemplary character. So exemplary means model, example. Everyone should be an exemplary character in his region or in his house or in the schools, college. So a man can be imaginary exemplary character. So is exemplary. And the second is now adamant. Adamant क्या होता है? Who is adamant? Adamant का मतलब होता है कि जो है जो झुकता नहीं है. एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी. यू कैन से एडमेंट का हिंदी मतलब होता है जिद्दी. इष्टबार भी कहते हैं, जिद्दी भी कहते हैं, और एडमेंट मतलब अड़ियल भी कहते हैं उसको, अड़ियल. तो इफ यू आर अ मैन ऑफ एन adamant character, if you are an adamant, तो adamant का मतलब होता है जिद्दी. He is adamant in certain field that it should not be done. He is adamant that we should not be very much scientific in religion. He is adamant that one should not be adamant in religion. So adamant characters. Some adamant characters are there. Those who एडमेंट मतलब होता है
जैसे he is adamant on the subject of morals and be not easily swayed away. He is adamant on the subject of the moral. So adamant of subject of the moral मतलब he is very much strong in a moral issue, that he is not ready to compromise with anyone on moral issues. So that is he is of good character. That adamant, if he is not adamant to go himself on this thing, so that is he is on religion. Moral issue, what is moral issue? Moral issue का मतलब होता है झूठ बोलना, गलत काम करना. कुछ लोग ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो इस कैरेक्टर के होते हैं कि वो जो कभी झूठ नहीं बोल सकते और उसको उस पर बहुत चिढ़ होती है. तो एडमेंट का मतलब ही इज एडमेंट ऑन द थॉट ही प्रैक्टिस. ही इज एडमेंट ऑन द थॉट ही प्रैक्टिस. तो एडमेंट, ही इज एडमेंट. और फिर इसके बाद दूसरा कैरेक्टर ये जिद्दी हो सकता है. मैंडेटरी मतलब होता है जरूरी, आवश्यक, आवश्यक. आवश्यक तो जरूरी, कंपल्सरी, उसको कंपल्सरी बोल सकते हैं. कंपल्सरी, कंपल्सरी. तो मैंडेटरी जैसे to be an assistant professor you have to qualify NET. You must be a PhD. So this is a mandatory character. This is a mandatory qualification for the post of assistant professor. So assistant professor requires what we call NET compulsory and PhD compulsory. So mandatory, जैसे reading and writing are mandatory for the cultured society. In cultured society, reading and writing are mandatory part of a civilian. तो रीडिंग, पढ़ा लिखा होना सभ्य समाज का कंपल्सरी क्या है? योग्यता है. तो द कंपल्सरी एजुकेशन of a good town or city is to be an educated person. तो this is called mandatory. अच्छा, कॉमाटोस का मतलब होता है, कॉमाटोस का मतलब होता है कि सुस्त, सुस्त, लेजी, लगार, सोने वाला. when everyone is up and going to do something, so this man is sleeping. To him his sun rises at 10 o'clock. So that is called comatose. Comatose means lazy, alasi, who is not very up to date in living. So he is a lazy type. He loves rest. He loves just idling away the time. तो कामाटोस मतलब सुस्त, कामाटोस मतलब सुस्त. और इसके बाद क्या? परनीशियस. परनीशियस मतलब जहरीला. परनीशियस मीन्स पॉइजनस. परनीशियस मतलब होता है पॉइजनस, जहरीला.
जहरीला, परनीशियस एयर। परनीशियस एयर का मतलब होता है जहरीली हवा। परनीशियस एयर किल्ड सो मेनी पीपल इन सम स्टेट। तो परनीशियस मतलब जहरीला, परनीशियस, परनीशियस एयर। परनीशियस मीन्स पॉइजनस, तो परनीशियस इज द राइट वर्ड, परनीशियस एयर, जहरीली हवा। एविड मतलब होता है स्मार्ट, तेज, तेज तर्रा, शार्प, ऑफ शार्प माइंड, मतलब he can remember so many things in mind. He does not forget easily the things he remember, so that is avid. और omnivorous means क्या होता है, both are used together. Omnivorous मतलब extended, large, जैसे he is omnivorous reader. Omnivorous reader मतलब he has gone through many books, he has written many books, he has gone through many books, and he still goes on reading many books. तो उसको बोलेंगे omnivorous, जिसकी पढ़ाई जो है बहुत दूरी तक हुई है, बहुत ज़्यादा अध्ययन है, सैकड़ों किताब पढ़े हुए हैं। तो एविड एंड omnivorous रीडर मीन्स जो शार्प और विस्तृत पढ़ा लिखा आदमी को रीडर बोलते हैं, omnivorous रीडर कहते हैं। तो ये यू कैन ज्वाइन बोथ। एविड का एक अलग है, एविड मतलब होता है कि शार्प, शार्प और इंटेलिजेंट, और omnivorous का मतलब होता है कि नॉट नेसेसरी वेरी इंटेलिजेंट बट ही मे बी वाइडली रेड, ही मे बी वाइडली रेड पर्सन। तो एविड एंड omnivorous reader means a man who is very intelligent and very extensive, this you say the extensive reader, तो omnivorous। और इसके बाद है रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी का मतलब क्या है, अड़ियल, अड़ियल। जैसे कोई घोड़ा होता है, उसको नदी में ले जाओ तो पानी पीने के लिए बोलो तो नहीं पिएगा, उसका मन नहीं है तो कितनी देर तक बैठे रहो, इट विल नॉट ड्रिंक। तो अड़ियल घोड़ा, अड़ियल। तो some people are refractory, you cannot make them understand, whatever in their mind they will go on it, and very difficult to persuade them. तो ऐसे लोगों को बहुत मनाना बड़ा मुश्किल होता है। those who are refractory, you cannot make them under your control. वो refractory मतलब होता है वो बिगड़ा तो बिगड़ा ही है, it is very difficult to handle them and put them under your control. So refractory character is the character who is a अड़ियल type, किसी की बात न माने, अपनी ही बात माने, तो that type character is the refractory character. और इसके बाद है ostensious. ostensious मतलब होता है दिखावा, ostensious। जैसे he is living in ostensious house. ostensious मतलब होता है जो को दिखावा करके देखने से बहुत सुंदर लगता है। तो सुंदर लगने वाली चीज़ जो है वो ostensious होती है, और सुंदर लगने वाली चीज़ की विशेषता यह होती है कि सुंदर लगने वाली चीज़ कभी कभी सही में सुंदर होती है। सुंदर दिखने वाला खिलौना और सुंदर दिखने वाला आदमी बहुत ही डेंजरस होता है। वो देखने में सुंदर लगता है लेकिन अंदर से वो काला होता है। वो ही इज़ ए ब्लैक शीप, इज़ ए ब्लैक शीप इन ए सोसाइटी। तो ये ऑस्टेंसस मतलब होता है सोई। जैसे हिज ऑस्टेंसस हाउस, उसका सोई घर देखने से उसका घर बहुत सुंदर लगता है। उसके पीछे क्या है वो नहीं कोई पता है, लेकिन फ्रंट का जो फ्रंट पेज होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है उसके घर का फ्रंट। सो फ्रंट जो व्यू होता है बहुत अच्छा लगता है, उसको ऑस्टेंसस बोलते हैं, ऑस्टेंसस हाउस। मतलब दिखावा घर। कुछ लोग होते हैं घर को सुंदर बना के रखते हैं, घर को पूरा सुंदर नहीं, घर को बाहर से देखने में सुंदर लगता है ऐसा बना के रखते हैं।
So guys, these are the 9 words I have just gone through. Hope you will have enjoyed it. So let us recap. The first is what we call exemplary. Exemplary character means any character who can be model. तो exemplary character. Adamant का मतलब होता है जिद्दी. जैसे एक रिफ्लेक्टरी है, ये एडमंड मतलब ही जैसे छोटे बच्चे जिद्दी होते हैं कि या आई विल बाई साइकिल, और वो रेंजर वाली ही साइकिल खरीदेंगे, दूसरा कोई नहीं. तो दैट इज जिद्दी, है ना, जिद्दी टाइप. मैंडेटरी मतलब होता है जो आवश्यक होता है. जैसे आपको इंजीनियरिंग IIT में पढ़ने के लिए उसको ये ज़रूरी है कि आप उसको जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको पास करें. इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इंट्रेंस ऑफ IIT टू हैव सर्टेन डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन. तो आप उसको मैंडेटरी मतलब आवश्यक. अगर आपके पास नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते. कामाटोस का मतलब होता है सुस्त, लेजी. सब लोग जब सो करके उठते, जब सब लोग जो काम पर चले जाते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो सो करके उठते हैं. तो वो कहते हैं 10 बज रहा है क्या, उनको पता नहीं कि 6 बजे उठाया जाता है 10 बजे. तो ये लेजी टाइप के लोग होते हैं, इसको कामाटोस बोलते हैं. और फिर परनीशियस का मतलब होता है पॉइजनस. जैसे अभी जो ठंडी हवा चल रही है वो ठीक नहीं है, इसमें ठंडक है ये है, तो इट में भी परनीशियस एयर फॉर यू, जो आपको बीमार कर सकती है. यू मे हैव कफ एंड कोल्ड, यू मे हैव फीवर बिकॉज ऑफ दिस एयर, कोल्ड वेव्स दैट आर गोइंग ऑन. एंड देन you have avid and omnivorous. Avid means that is sharp and intelligent mind, that is India. Omnivorous means extensive work, extensive study. तो जो लड़का extensive study किया होगा और जो लड़का दिमाग का तेज होगा उसको he is avid and omnivorous reader, आप इसको कह सकते हैं. इसी तरह से रिफ्लेक्टिव है. रिफ्लेक्टिव का मतलब कि person who is not easily controlled by anyone, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाला आदमी, तो रिफ्लेक्टिव. और ऑस्टेंसस मतलब हमने बताया कि सोई होता है. सोई का मतलब दिखावा. जैसे जो दिखावा वाला घर होता है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. तो सब जो दिखावा, हर दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती, नहीं. तो जो दिखावा है वो नहीं है. ऑस्टेंसस मतलब दिखावा. तो इस तरह से यू हैव सीन 9 एडजेक्टिव्स, मे बी बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू यूज देम एंड इफ यू know them, you will feel glad that you know these words, and this will help you a lot. दोस्तों, कोई भी पढ़ाई, कोई भी चीज़ नुकसान करने वाली नहीं होती, स्पेशली आज के ज़माने में. पहले ऐसा होता था कि वो पढ़ लिया और उसको काम नहीं आया. आज ऐसा नहीं. आज ऐसा सिलेबस बनाया जाता है कि आपको जो भी आप पढ़ो सो भी आपको आपके काम आएगा. जैसे बहुत यहाँ उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी को छांट देते हैं, बहुत बेवकूफ़ी करते हैं. बिहार में ऐसी चीज़ नहीं. बिहार में BA से कंपलसरी है, सबको पढ़ना पड़ता है. उत्तर प्रदेश में चूँकि यहाँ सबको ले नहीं सकते, इसलिए बेवकूफ़ बनाएंगे या अनएम्प्लॉयड रखेंगे. तो ये बहुत गलत चीज़ है. जानना जरूरी है, अंग्रेज़ी जानना जरूरी है. अंग्रेज़ी बिना जाने कैसे आप दुनिया में रह सकते हो. अब दुनिया का वैश्वीकरण हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आपके पड़ोसी हो गए हैं. लंका भी जा सकते हैं. हर लोग रोज चाय पीने के लिए दुबई जाता है. तो कैसे आप कह सकते हो कि अंग्रेजी अब चला गया, अब नहीं होगा. अंग्रेजी तो अब आया है. यू कैन नॉट इफेस योर सेल्फ फ्रॉम इंग्लिश. यू कैन नॉट बी अवे फ्रॉम दिस. तो आप सीखिए. आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको नौकरी पानी है. आपको उसको पाने के लिए भी आपको काम करना चाहिए. क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ें. तो फिर हम आप कल मिलेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.